Good morning, class 2. And the topic number 2 for today's class is exercise number 8 of chapter number 1, that is ascending and descending order. Right? So about this we had already learned the concept in our lower classes, that is in grade 1. But now as you are in grade 2, so the complexity is getting more and more. In your previous class you might have learned about putting the 2-digit numbers in ascending or descending order, right? But here in class 2 we are going to learn about how to put 3-digit numbers in ascending or descending orders. Alright, so just to recall, what do you mean by ascending order? Ascending order means when we put the numbers from smallest to greatest, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर और वो तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि हमें सबसे बड़ा नंबर नहीं मिल जाता एक सीरीज में. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी हम शुरुआत करेंगे सबसे बड़े नंबर से और तब तक लिखते जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में जब तक कि हमें सबसे छोटा वाला नंबर नहीं मिल जाता. राइट? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी क्योंकि हम बढ़ते जाते हैं सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले इसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स हम सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट लिखते हैं और सबसे लास्ट में सबसे छोटा डिजिट लिखते हैं. इसे मैं एक एग्जांपल के हेल्प से समझाना चाहूँगी. सपोज आपके स्कूल में असेंबली हो रही है. ओके, अब स्कूल असेंबली में आपके जो पीटीआई सर हैं या आपके जो स्पोर्ट्स ट्रेनर हैं वो आपको बोलते हैं कि आप सभी को रोल नंबर वाइज अरेंज होना है. रोल नंबर वाइज अरेंज होना है एक क्यू में, एक लाइन में. ओके, सो अब आप ये पूछेंगे कि हमें अरेंज कैसे होना है, बिकॉज सपोज आपकी क्लास में 1 to 10 स्टूडेंट्स हैं, तो आप पूछेंगे कि सर हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी हमें 1 to 10 खड़े होना है या 10 to 1. सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so it means you are arranging yourself in ascending order. But if you are standing like starting from roll number 10, roll number 9, roll number 8, roll number 7, okay, as you can see they are decreasing one by one, so it means you are standing in descending order. All right, so let's recall your previous work done in your class 1 so that we could move forward to our second class work. Right, so here I have written here one example which is having 2-digit numbers and 1-digit numbers. So you all are aware of forward counting and backward counting, so you can do it very easily. As you can see, the smallest number is 9. So in ascending order we write smallest number first, so I am writing here 9. Then after 9 only 1 2 3 4 numbers are left, so 11 is the smaller one, so I am writing 11, so cut 11. Then 25, 29 and 14, out of these three numbers 14 is the smaller one, then we'll write 25, then we'll write 29. So descending order means now we need to write down the highest number first, greatest number first. So what is the greatest number? That is 29, then 25, then 14, then 11, then 9. Okay, now let's start with another examples. All right, so there is example number 1. As you can see, I have written 1 2 3 4 5 numbers over here, and each number contains 3 digits. Right, you may find it very difficult to put all these numbers in ascending order or descending order. So in this video I'm going to tell you the easiest method to arrange the numbers in ascending and descending order. So what you need to do is, first of all you need to make a place value chart. So I am going to do it over here. So ones, tens and hundreds. Right, in 3 digits we have 3 places. Start putting each number in this place value chart. So your first number is 723, so I'm going to put it 3 2 7. Next number is 159, so 9 5 1. Next number is 621, so 1 2
and 6, and next number is 395, so I am going to put it over here. This will do later. And the last number is 228, so 8, 2 and 2. So this, all the numbers I have put here in the place value chart. अभी हमने प्रीवियस वीडियो में कंपैरिजन ऑफ नंबर्स किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जब भी आप नंबर्स को कंपेयर करें, आपको सबसे पहले कौन से प्लेस के डिजिट्स कंपेयर करने होते हैं? हंड्रेड्स के। अगर 100 के डिजिट सेम हो तो टेंस के, और अगर टेंस के भी सेम हो तो वंस के कंपेयर करने पड़ते हैं, तभी आपको स्मॉलर या ग्रेटर वैल्यूज़ मिलती हैं, राइट। सो अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? सारे नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। और जब सभी नंबर्स को कंपेयर करना है तो कंपैरिजन का रूल नंबर 1 क्या है? हमें सबसे पहले सभी नंबर्स के 100 को कंपेयर करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले 100 को कंपेयर करने पे हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 100 पे स्मॉलेस्ट डिजिट 1 है ना। तो हम सबसे पहले कौन सा नंबर दिखेंगे? 159, और इसको प्लेस वैल्यू चार्ट से कट कर देंगे क्योंकि हम इसे यूज़ कर चुके हैं। पुट कोमा। नाउ विच नंबर्स आर लेफ्ट? नाउ वी हैव 4 नंबर्स विद अस, 723, 621, 395 एंड 228। अब बाकी बचे जो 4 नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स के 100 वैल्यूज़ को कंपेयर करो। 7, 6, 3 एंड 2। अब इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका? 2। तो आप 228 यहाँ लिख दोगे और प्लेस वैल्यू चार्ट से उसे कट कर दोगे। पुट कोमा हुए हो। अब आपके पास कितने नंबर्स बचे? 3 नंबर्स। फर्स्ट इज 723, नेक्स्ट इज 621 एंड नेक्स्ट इज 395। तो अब जो आपके पास बचे हुए 3 नंबर्स हैं, आप उन 3 नंबर्स की 100 वैल्यू को कंपेयर करोगे। जैसे अब हम कंपेयर करेंगे 7 को, 6 को और 3 को। तो 7, 6 और 3 को कंपेयर करने पे आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा आया? 3। तो आप प्लेस वैल्यू चार्ट से 395 को कट करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे। क्लियर? अब आपके पास कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स, 723 एंड 621। अब इन दोनों नंबर्स के आप 100 प्लेस को कंपेयर करोगे। तो 7 और 6 कौन सा स्मॉलेस्ट है? 6। तो 621 वाले नंबर को आप प्लेस वैल्यू चार्ट से कट करोगे और उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे। अब हमारे पास कितने नंबर्स बचे? ओनली 1, एंड दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वन। वो सबसे बड़ा नंबर है। ये देखिए आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। क्लियर? अब ऐसे ही हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम चीज़, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी आपको क्या करना होता है? 100 प्लेस को सबसे पहले कंपेयर करना होता है। तो अब आप देखिए आपके पास 7, 1, 6, 3, 2 सबसे हाईएस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट वाला 100 किसका है? 723 का। तो हम यहाँ पर 723 लिख देंगे, कोमा। उसके बाद हमारे पास बचे बाकी 4 नंबर, 159, 621, 395 एंड 228। तो अब आप 1, 6 और 3 और 2 को कंपेयर करो। तो आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 621। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप जस्ट कंपेयर ऑल द नंबर्स and you will be able to sort it out. See how easy. Let's start with the example number 2. Again I have written some numbers over here, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, now what you need to do is, again I told you that 3 digit numbers is having 3 places, ones, tens and 100. Put all the numbers under the relative values. So 723 will be written like that, 3, 2, 7, 159, 621, so first of all ones value, then tens value, then 100 value, 395 and 128. Again comparison of numbers. Rule number 1, compare the digits of 100 place. So compare the digit of 100 place. So if we want to write in ascending order, so हमें कंपैरिजन के टाइम पे सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हैं तो कंपैरिजन में हमें सबसे ग्रेटेस्ट वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो अभी हम असेंडिंग ऑर्डर करने जा रहे हैं।
तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर देखिए 100 प्लेस पे किस किस का है, एक तो 1 है 159 का और 128 का, बट कंफ्यूज क्योंकि 100 प्लेस दोनों का क्या हो गया, सेम। और जब 100 प्लेस सेम हो जाता है तो हम किसे कंपेयर करते हैं, टेंस प्लेस को, यानी बाकी नंबर्स को तो भूल जाओ, अब जिसके 100 प्लेस सेम आ गए हमें उसके टेंस को कंपेयर करना है। तो जब आप टेंस को कंपेयर करोगे तो 159 में आया 5 और 128 में आया 2, तो 5 और 2 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2। तो ऑब्वियसली 128 प्लेस वैल्यू चार्ट से कट कर असेंडिंग ऑर्डर के लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाएगा। अब क्योंकि 128 तो कट गया, अब हमारे पास कितने नंबर्स बचे, 723, 159, 621 एंड 395, 4 नंबर्स आर लेफ्ट विद अस। तो अब हम इन चारों के 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो चारों का 100 प्लेस देखो, 7 है, 1 है, 6 है, 3 है। अब इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा आया, 1। तो हम 159 वाले नंबर को कट करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी प्रैक्टिस कीजिएगा। दोनों एक्सरसाइज मैंने आपको साथ में करवाई हैं, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स भी, ताकि आपको कंपेयर करना आए। अगर कंपेयर करना आ जाएगा इजीली तो आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, गुड लक एंड डू दिस प्रैक्टिस एट योर होम।